Hello everyone. Today I am going to share the tips to boost your score in physics in JEE Main and JEE Advanced. Well, you have two options. Either you can solve a very specific set of books and make your studies hassle free and also make your studies efficient. And on the other way, you can do a lot of books and creating havoc and your efficiency also goes down. So in my opinion, you should follow the first thing. Do only specific set of books also in a very specific order. मतलब कि पहले आपको कुछ standard books करनी चाहिए, then standard problem books and then mocks, so that your efficiency increases day by day. So let's begin the session. First of all, starting with the books, because books are the very important part for the JEE preparation. So these are the must to do books for JEE. These are for JEE Main and JEE Advanced. So first of all, HC Verma. So the most important quality of HC Verma is the most relevant set of problems. मतलब जो इसका एक एक प्रॉब्लम है एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स में, यू कैन फाइंड इट रेलेवेंट टू जेई मेन एंड जेई एडवांस. मीन्स कि अगर आप जेई मेन एंड जेई एडवांस के प्रॉब्लम देखते तो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज रिलेवेंट टू द सेट इन एच सी वर्मा का जो क्वेश्चन सेट है उसका. डीसी पांडे, इसकी क्वालिटी ये है कि बेस्ट एग्जांपल्स है इसमें, यानी अगर आप सारे इसमें से कुछ एग्जांपल्स अगर आप सॉल्व करते देन यू आर रेडी टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन इन जेई, बिकॉज इट गिव्स यू अ वेरी राइट वे एंड द राइट एग्जांपल्स. मतलब जितने भी एग्जांपल्स है दे आर फ्रेम्ड रिलेटेड टू द पेपर ऑफ जेई मेन एंड जेई एडवांस. So this is a must to do book if you are not able to solve your problems. Herodov, if you are dreaming to conquer Olympiads like Homi Bhabha, Olympiads, NSEP, INPHO, and even IPHO. So you should surely go for it. For JEE Main and JEE Advanced, I can tell you should follow these books only for some specific modules like IE Herodov is good for mechanics and SS Krotov is good for electrodynamics. Then comes resonance rank booster. It is a very perfect set to analyze your conceptual standing. It means you can get to know कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है by solving these problems. इसके अंदर अगर आप हर क्वेश्चन यानी हर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं किसी भी टॉपिक का, then your preparations are going good. Then coming to FITZE Grandmaster package, so the questions are of very tough level, and I will recommend if you are aiming for top ranks in JEE Advanced, then surely you should go for it. Cengage, Cengage, it is a very best book for those like you are not able to revise your formulas daily. So the best thing to revise your formulas is to solve questions by formulas. And सिंगेज में बहुत से प्रॉब्लम्स फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, एंड अगर आपकी प्रॉब्लम स्पीड भी बहुत स्लो है सो यू शुड ऑल्सो गो फॉर इट, बिकॉज प्रॉब्लम स्पीड काफ़ी मैटर करती है जेई के पेपर में. सो इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन आपको बेसिक मिल जाएंगे दैट कैन हेल्प यू टू इन्हांस योर प्रॉब्लम स्पीड. अब कुछ बात करते हैं कुछ ऐसे मॉड्यूल्स जो आपको ज़रूर कवर करने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी आसान मॉड्यूल है बिकॉज जेई एडवांस में भी उतना टफ प्रॉब्लम नहीं आता है. इसके लिए अगर आप एच सी वर्मा की सारी एक्सरसाइजेस एंड आर्चिव सॉल्व करते हैं उसके बाद आई थिंक कि आपका पूरा कवर हो जाना चाहिए मॉडर्न फिजिक्स. इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आपको नहीं बनेंगे. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यू विल बी एबल टू सॉल्व. उसके अलावा अगर आप अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम स्किल्स इन्हांस करना चाहते हैं तो गो फॉर सिंगेज. For mechanics, you can solve SC Verma. You should solve SC Verma and DC Pandey. Mechanics में you can find some of the topics very hard like rotational motion and angular momentum topics. Well, leave that for once. Try to build up your concepts in the previous topics like NLM and all, and that will be a very plus point for that topics. And do solve archives for all the chapters. Herodov will be a good book for mechanics because all the problems are at par level with JEE Advanced, which can give you a very deep insight for preparation for JEE Advanced. इलेक्ट्रोडायनामिक्स द मोस्ट वेटेड मॉड्यूल. इसके लिए मैं कहूँगा एस सी वर्मा डी सी पांडे बेस्ट रहेगा अपार्ट फ्रॉम आर्चीव्स. एंड एस एस प्रोटोव के जो एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन है दे आर द बेस्ट फॉर दिस मॉड्यूल. आई हैड सॉल्व फुल एस एस प्रोटोव फॉर electrodynamics only, and I find it very great set of problems in SS Proto. Coming to a plan, so your plan will include a study plan and analysis. तो स्टडी प्लान क्या होगा आपका, डेली आपको 3 आवर्स की प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है एंड 1 आवर का आपको कंसेप्ट रिवाइज करनी है. कंसेप्ट रिवाइज करने से आपकी थोड़ी प्रॉब्लम स्पीड बढ़ जाती है. प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से आपको पता चलता है कि कौन से नए टाइप के प्रॉब्लम्स है जिनको आपको सॉल्व करने में नहीं होता है. यू कैन नोट दैट डाउन ताकि आप उन्हें कभी फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकें. एनालिसिस के लिए आप क्या करेंगे, आई मीन कि इफ़ यू आर रेडी फॉर द एनालिसिस, मतलब आपने पूरा कंसेप्ट और प्रैक्टिस कर लिया है, देन स्टार्ट गिविंग मॉक्स. एक हफ्ते में इन अ वीक गिव अ टोटल फॉर ऑफ 5 आवर्स. आपको 5 घंटे निकालने हैं हर हफ्ते में टू गिव मॉक्स.
एंड मॉक्स आप दे सकते हैं टॉपिक वाइज की, जैसे अगर आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया जैसे थर्मोडायनेमिक्स, तो उसका टॉपिक वाइज मॉक देना है। देन स्टार्ट गिविंग फुल क्लास वाइज मॉक, मतलब पूरे क्लास 11th के फिजिक्स। एंड देन स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ, मतलब फुल फिजिक्स सिलेबस मॉक। आपकी जो एवरेज स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए अराउंड 35 क्वेश्चंस पर आवर। और मॉक्स का एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रॉब्लम्स आपसे नहीं बने उनको आपको रीसॉल्व करना चाहिए। आपको उसके कंसेप्ट विजिट करने चाहिए एनसीईआरटी या एससी वर्मा में, एंड देन रीट्राई इट। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशंस देके आपको एनालाइज करना चाहिए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। कमिंग टू नोट्स, नोट्स हैंड रिटन होते खुद के होते तो वो बेस्ट रहता है। और कुछ उसके लिए टिप्स जो है कि कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट के लिए आप एच सी वर्मा या डी सी पांडे जैसी कोई भी स्टैंडर्ड बुक से नोट कर सकते हैं। बिकॉज जेई मेन के लिए तो कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ऑल्सो फॉर्मूलाज नोट करना भी बहुत अच्छी ट्रिक होती है, बिकॉज जेई एडवांस में भी बहुत से प्रॉब्लम से फॉर्मूलाज अप्लाई हो जाते हैं। कमिंग टू एग्जाम्पल्स, हर बुक में ऐसा एक ना एक प्रॉब्लम ये रहता है जो थोड़ा यूनिक रहता है। उसकी लैंग्वेज ही अगर आपको नहीं समझ आती है तो थोड़ा हार्ड होता है, बाकी से थोड़ा अलग होता है। तो उसको नोट कर लेना बेस्ट थिंग होती है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है सो उसके लिए आप यही कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली सोल्यूशन देख के आगे बढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, उस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कभी फ्यूचर में मिलेगा सो यू कैन ट्राई इट। अगर आपने उसका सोल्यूशन ही नहीं देखा होगा तो यू विल फील कि व्हाई आई हैडंट सॉल्व इट अर्लियर। तो बेटर यही रहेगा कि आप उसे उसी वक्त सॉल्व कर ले। या तो अगर आपने उसी वक्त सॉल्व नहीं करना है, अगर आपको थोड़ा सा उसके ऊपर और अपना माइंड यूज करना है सो आप उसको एक बार नोट कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि यू कांट लीव इट, मतलब वो छूट ना जाए। आर्चीव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पे अगर आपका पूरा अगर हो चुका है मतलब प्रिपरेशन, उसके बाद भी प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आपको हार्ड लग रहे हैं तो उनको नोट करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपकी कहाँ पे लैगिंग हो रही है, मतलब कौन सा टॉपिक आपने सही से नहीं पढ़ा है। कमिंग टू हाउ टू कवर न्यू टॉपिक्स, क्योंकि अभी अगर आपने बहुत से टॉपिक नहीं पढ़े तो न्यू टॉपिक्स को कैसे कवर करना है। तो न्यू टॉपिक कवर करने के लिए 8 इंपॉर्टेंट टिप्स है। सबसे पहले आप एस सी वर्मा जैसी कोई भी स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा एस सी वर्मा बेस्ट रहेगा, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड बुक है। देन सॉल्व कपल ऑफ कंसेप्ट, यानी जो भी एग्जांपल्स दिए उनको सॉल्व करना चाहिए, कंसेप्ट्स को ट्राई अप्लाई करके देखना चाहिए। देन स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइजेस। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, एक बार आर्चिव जरूर लगाना चाहिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि जितना आपने पढ़ा है वो राइट डायरेक्शन में है कि नहीं। देन यू कैन सॉल्व डीसी पांडे, सिंगेज। और इन बुक्स करने के बाद आपको अपने बचे हुए आर्चिव जो आप पहले ट्राई में नहीं कर पाए थे उनको कवर करना चाहिए। देन स्टार्ट गिविंग टॉपिक वाइज मॉक, जैसे कि अगर आप, मैंने अभी एग्जांपल दिया था थर्मोडायनेमिक्स आपने कंप्लीट कर लिया, देन गिव अ टॉपिक वाइज मॉक फॉर थर्मोडायनेमिक्स। एंड देन रिवाइज दैट चैप्टर जो आपने अभी अभी पढ़ा है उसको वीकली रिवाइज करना बेस्ट रहेगा, ताकि आप सारे कंसेप्ट, फॉर्मूलाज, एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स जो आपने नोट किए थे उनको एक बार फिर से रिवाइज कर पाए एंड हैव अ गो थ्रू इट। एंड आफ्टर ऑल दिस स्टेप्स यू आर ऑल सेट फॉर द मॉक। उसके बाद अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपको नहीं सॉल्व हो रहे, देन उनके आपको सॉल्यूशंस देके उनको भी नोट डाउन करना चाहिए कि ओ दिस इज अ अनदर काइंड ऑफ थिंग विच गलती से आपने छोड़ दिया होगा या तो वो स्लिप हो गया होगा आपके माइंड से। So this is all for today. Thanks for watching this session. To connect with me, I have given Insta handle, Quora handle, and this is my mail ID. All this thing is in the description. For resources like Resonance Rank Booster and Books PDF, you can visit the website. The link ScoreUp JE, and the link is in the description. Thanks for watching the session. Do subscribe the channel for more videos. Thank you.